I, Ashish Jain, as the Chief Financial Officer of Acme Star Housing Finance Limited, is feeling immense pleasure and glad to welcome you all in the listing ceremony of our company. Now, I request Mr. Nirmal Kumar Jain, Director of Acme Star Housing Finance Limited, to please take his seat on the dais. I also request Mr. Deepak Sharma of Sarthi Capital. Sir, please. Mr. V. Rajan and Mr. Ajay Thakur from BSE. Thank you. Following this, I request Mr. Bansilal Jain, promoter, and Mr. Anilji Kothari of Acme to welcome Mr. V. Rajan by presenting him with the bouquet and welcome him with the turban, the Shan of Mewar. Mr. V. Rajan is head sales from BSE. Next in line, Mr. Ajay Thakur. For welcoming him, I request Mr. Anil Kumar Jain, promoter, and Mr. Bharat Jain. Mr. Kamal Jain and Mr. Anil Kumar Jain. Mr. Ajay Thakur is head SME segment BSE. Thank you. For welcoming Mr. Deepak Sharma of Sarthi Capital, I request Mr. Ramesh Pancholi and Mr. Nirmal Kumar Jain. Uncle. To welcome our visionary Mr. Nirmal Kumar Jain, I request Mr. Anandji Lakhotia of Sarthi Capital and Mr. Mahavirji Toshniwal of Choice Broking. No problem. Sir. No issues. Mr. Nirmal Kumar Jain is the chairperson of Acme Group of Companies. I request all the guests to please come forward to light the lamp.
Thank you, sir. Please have your seat on the dais. This is a very big day for us. Now, I will just give a brief introduction of our company. ACME Star Housing Finance Limited is a SME company incorporated on 17th March 2005 with the vision to provide financial assistance with no burden. ACME Star Housing Finance Limited provides financial assistance for one of the basic needs, that is shelter. We believe in serving the society in such a manner that whosoever comes to us, we help them with our full support according to their requirement. We follow the principle of a friend in need is a friend indeed, with strict guidelines and procedures as laid down by National Housing Bank. From now on, I request Mr. Nirmal Kumar Jain, Director of ACME Star Housing, to please deliver his speech and throw some light on ACME Star Housing and what we do. Thank you. Ladies and gentlemen, in the era of 90s when RBI was not having any control over non-banking finance company, taking benefit of that, many company incorporated and came in market that basically targeted the rural and illiterate people. They given them big dream and attractive return. And basically within a span of 1 or 2 years, they run away with hard-earned money of those rural people, like barber, small shopkeeper, and shoemaker like that. मेरे सामने जो लोग बैठे हुए हैं, तो चाहिए तो मुझे इंग्लिश में बोलना, लेकिन उनके शेख लिए मैं चाहता हूँ कि मैं हिंदी में बात करूँ, क्यों दिल से दिल की बात की जाए तो अच्छा लगता है, भले कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन अपनी मातृभाषा और अपने लोगों के बीच की बात नहीं करे तो अच्छा नहीं लगता। ये वो दौर था जिस समय फाइनेंस कंपनियों का, रिजर्व बैंक का कोई कंट्रोल नहीं था। बहुत सारी फाइनेंस कंपनियां मार्केट में आई और उनका एक ही उद्देश्य था कि लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाना, अच्छे इंटरेस्ट की लालच देना और उनकी मेहनत की कमाई को लेकर चले जाना। जब एक्मे ग्रुप के डायरेक्टर्स कुछ शिक्षित लोगों को और उद्योगपतियों को अपने नैतिक जिम्मेदारी का एहसास हुआ उन लोगों के प्रति जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं, हम लोग सर उन्हीं छोटे छोटे गांवों से बिलोंग करते हैं जहाँ आज भी बैंकिंग नहीं होती है, नहीं के बराबर होती है। तो हम लोगों ने उनके प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारियों के तवज्जो देते हुए एक फाइनेंस कंपनी लेके आए मार्केट में, एक्मे फिनटेक इंडिया लिमिटेड, जिसका एकमात्र उद्देश्य था लोगों को छोटी छोटी जमाओं को इकट्ठा करना, उन्हें जमाओं के लिए प्रेरित करना, उनकी जमाओं पे सुरक्षा प्रदान करना और जब आवश्यकता हो उन्हें वापस पैसे देना। यही कारण रहा कि एक्मे ने अपने दायित्व को निभाया, न केवल बिजनेस किया बल्कि उसके साथ साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बांटा। लगभग 18 वर्षों से एक्मे फिनटेक इंडिया लिमिटेड राजस्थान की 12 डिस्ट्रिक्ट्स में एक लीडिंग फाइनेंसर के रूप में काम कर रही है और मेनली उन तबके के लिए काम करती है जिनके पास में देने की क्षमता है, देने का नैतिक दायित्व रखते हैं, लेकिन उनके पास इनकम प्रूफ नहीं होता। बैंकों के पास जाओ, बड़ी बड़ी फाइनेंस कंपनियों के पास जाओ तो उनके पास इनकम प्रूफ नहीं होता और उसकी वजह से उन्हें हाउसिंग सेक्टर जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती फाइनेंस सेक्टर में। हम लोगों ने 12 डिस्ट्रिक्ट में लगभग 50,000 का क्लाइंट बेस आज की तारीख में हमारे पास में है। लोगों ने 18 वर्षों के इस लंबे दौर में कंपनी को
न सिर्फ टेस्ट किया बल्कि उस पर विश्वास किया, और उसी का परिणाम है कि आज विश्वास का दूसरा नाम एक्मे है। चाहे छोटी छोटी जमाएं ले लो, चाहे बड़ी बड़ी जमाएं लो, सबको एक चीज़ ही नज़र आती है कि एक्मे के पास पैसा दिया तो सुरक्षित है और जब समय पे चाहेंगे तो मिल जाएगा। और उन्हीं लोगों की, रूरल बेल्ट में रहने वाले लोगों की हाउसिंग रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमने सोचा कि एक्मे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को लेके आया जाए। तो एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो 2009 से काम कर रही है और पर्टिकुलर उस सेगमेंट में काम कर रही है जहाँ बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है, और हम चाहते हैं कि कैसे उन लोगों को सस्ता लोन उपलब्ध करवाया जाए ताकि एक बेसिक आधारभूत आवश्यकता, कहते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान की आधारभूत आवश्यकता को पूर्ति की जा सके। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने भी एक सपना देखा है कि 2022 तक हर भारतीय के सर पर अपनी छत होनी चाहिए, और ये केवल उनका सपना है, लेकिन हर भारतीय का नैतिक दायित्व, हर संस्था का नैतिक दायित्व है कि उन सपने को पूरा करने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। बीइंग ए फाइनेंसर, यूनियन बजट में बहुत सारा प्रावधान होता है कि छोटे तबके के लोगों के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, कि रूरल में काम करने वाले उन लोगों को सस्ता लोन किस प्रकार उपलब्ध कराया जाए। यूनियन बजट में जो प्रावधान होता है, एक बहुत बड़े लगभग 22,000 करोड़ का जो प्रावधान है, वो फंड टोटली रूटेड होता है बैंक और फाइनेंस कंपनियों के थ्रू। तो ये गौरव की बात है कि एक्मे हाउसिंग फाइनेंस भी एलिजिबल हो गई है यूनियन बजट के उस फंड को लेकर, और हम अपने उन तमाम लोगों को वो सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, ताकि हम लोगों को भी, उन लोगों को भी एक छत मुहैया करा सके। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि एक छोटे से गांव से, छोटे से रूरल बेल्ट से चालू होने वाली एक्मे ग्रुप आज बीएससी के प्लेटफॉर्म पे तक आके खड़ा है। हमने कभी सोचा नहीं, मैं खुद ही चार्टर्ड अकाउंटेंट बॉम्बे से करने के बाद में भी बीएससी की इन गलियों से घुसता था तो सोचा करता था कि अंदर कैसे घुसे। आज बहुत सारे मेरे समाज के भाई बहन हैं, उनको बीएससी का नाम, उन्हें गले वर्षों हो गए बॉम्बे में रहते हुए, लेकिन उन्होंने वो बीएससी में कभी एंट्री नहीं की होगी। और शेयर मार्केट का तो जो खूब आज भी लोगों के दिमाग में है, उसको निकालने में शायद एक्मे में भी टाइम लगेगा। लेकिन आप सबका विश्वास है कि एक्मे ने उन ऊंचाइयों को प्राप्त किया, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बीएससी का, पर्टिकुलर ठाकुर साहब का, रंजन साहब का, जिन्होंने हमारे जैसी छोटी कंपनियों के बारे में सोचा, जो आज तक केवल अपने ऑपरेशन के माध्यम से या डायरेक्टर की गुडविल के माध्यम से एक सीमित क्षेत्र में, सीमित लोगों के बीच में अपनी पहचान बना रखी थी, उनको एक राष्ट्रीय स्तर का प्लेटफॉर्म देना। न सिर्फ इन्होंने देने के बारे में सोचा, बल्कि उनको मोटिवेट किया, जगह जगह जाके सेमिनार किए। उदयपुर में भी एक सेमिनार किया था कि ऐसी सभी कंपनी आवे, नेशनल प्लेटफॉर्म पे आवे, और हमने भी उस चीज़ का बेनिफिट लेकर हम जब पहुँचे इनके पास में, तो इन्होंने लाइक ए फैमिली डॉक्टर की तरह हमारे को ट्रीट किया, आपको कैसे आगे बढ़ना है। तो इनकी प्रेरणा का ही नतीजा है कि आज ये दिन हम देख पा रहे हैं। और उस सपने को साकार करने में हमारे डायस पर बैठे सारथी के दीपक जी और इनकी पूरी टीम ने, लाखोटे जी, इनकी पूरी टीम में, चॉइस वालों ने, महावीर जी की उनकी टीम ने, और मेरे बैठे सभी सहयोगी, उन्होंने एक्मे के इस सपने को साकार करने में जो अपनी अहम भूमिका निभाई है, उसके लिए मैं हृदय की असीम गहराई से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और मैं चाहूँगा कि इसी प्रकार का सहयोग आपका मिलता रहे निरंतर, ताकि हम नई ऊंचाइयों को छू सकें। और एक्मे का एक ही प्रावधान है कि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचें, उनको अधिक से अधिक सुविधा दें, और बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी दिक्कत के उनको सुविधा प्राप्त हो। मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन कैसे किया जाए, उसका हमारा एकमात्र स्ट्रेस रहता है कि मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन, जिस सोसाइटी से हम बिलोंग करते हैं, जिस एरिया से हम बिलोंग करते हैं, उनमें लोगों की नीयत तो है, कैपेबिलिटी भी है, लेकिन जब इनकम प्रूफ की बात आती है, आईटीआर की बात आती है, तो उस केस में वो पूर्ण पड़ जाते हैं। और जो सुविधाएं बैंकों से लेनी चाहिए या जो यूनियन बजट में जो प्रावधान किए हुए, वो सुविधा हम लोग नहीं ले पाते। हम लोग चाहते हैं कि एक चैनल बनकर जो राष्ट्रीय स्तर पे जो प्रावधान किए जाते हैं, हम अपने लोगों में बांटें, उन रूरल बेल्टों में बांटें, जिनके विकास के लिए हम एक्मे निरंतर सोचता है। हम लोग फाइनेंस भी करते हैं तो उन लोगों को करते हैं जहाँ पर आज भी टू व्हीलर एज ए मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन उपयोग किया जाता है। उन किसानों को देते हैं, उन मिल्क वेंडर को देते हैं जो अपने गाँवों से अपने प्रोडक्ट मिल्क वहाँ से कलेक्ट करके शहरों में आकर उचित दर पे बेचते हैं।
निरंतर ये उनके इनकम में, उनके लिविंग स्टैंडर्ड में इजाफे करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक्मे स्टार हाउसिंग के बारे में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि एक्मे का एक सपना, सबका हो घर अपना, बस इसी उद्देश्य को लेकर हम चले हैं कि चाहे रूरल बेल्ट हो चाहे गांव का बेल्ट हो, जहाँ पे भी संभव हो सके हम लोगों को एक्मे की हाउसिंग की सुविधाओं से जोड़ें। और एक्मे ग्रुप के बारे में आप सबको विदित है कि एक्मे ग्रुप में एक्मे फिनट्रेड इंडिया लिमिटेड जो रिजर्व बैंक से रजिस्टर्ड होकर डिपॉजिट मोबिलाइज करने के लिए राजस्थान की मात्र 3 कंपनियों में से एक कंपनी है। एक्मे फिनकॉन जो माइक्रो फाइनेंसिंग करती है, जो आरबीआई से रजिस्टर्ड है। एक्मे स्टार हाउसिंग फाइनेंस जो एनएचबी से रजिस्टर्ड होकर हाउसिंग फाइनेंस में काम कर रही है। एक्मे बिल स्टेट जो खुद ही अफोर्डेबल हाउसिंग बनाती है, रो हाउसेज बनाती है और लोगों को देने का प्रयास करती है। उसके साथ में एक्मे ऑटोमोबाइल जो है, जो टीवीएस की मेन डीलरशिप के रूप में लोगों को वाहन प्रदान करने का काम करती है। और बहुत सारी गतिविधियां हैं एक्मे आगे अपना प्लान करती है। इसके साथ साथ में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी से हम कहीं दूर नहीं गए हैं। एक्मे ने बिजनेस के साथ साथ सोसाइटी के प्रति जो अपनी जिम्मेदारियां हैं उनको भी पूरा करने का प्रयास किया है। चाहे हॉस्टल की बात हो, चाहे संत निवास की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, जहाँ जहाँ भी संभव हो सका है हमने अपने उत्तरदायित्व को निश्चित तौर से पूरा करने का प्रयास किया है। और अपने लोगों की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए अपने अपने लोन पोर्टफोलियो में वैसा सुधार किया है कि जैसे बहुत सी बार बैंकों में देखने जाते हैं कि हम लोग 2 लाख 3 लाख के रूरल लोन की आवश्यकता होती है मकान के लिए, लेकिन सर्च और वैल्यूएशन के नाम पर उनको 10-10 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं। हमने अपने मिनट्स में ऐसा प्रावधान कर दिया, एक रिजोल्यूशन पास करके कि 2 लाख तक का जो लोन लेगा उससे कोई सर्च रिपोर्ट नहीं मांगी जाएगी, उससे कोई वैल्यूएशन रिपोर्ट नहीं मांगी जाएगी, क्योंकि हम जिनसे बिजनेस करते हैं वो अपने अपने हैं, कोई अननोन लोग नहीं होते। इसके लिए हम सबकी सुविधा को लियो, सबको साथ में लेकर एक नई ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। और मैं अपने धन्यवाद के अंतिम चरणों में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अभी तो परिंदे ने उड़ान भरी है, अभी तो परिंदे ने उड़ान भरी है, अभी तो बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। तुम्हारा साथ रहा तो निश्चित तौर से हम ऊंचाइयों को छुएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Thank you, sir, for your remarkable words. Now I request Mr. V. Soundararajan, Head Sales, BSc, to please say few words. Thank you. Good morning. I am Soundararajan, Head of Sales and SME segment of BSc. I welcome everyone for this listing ceremony of Acme Star Housing Finance Limited. I welcome Mr. Nirmal Kumar Jain, Director Acme Star Housing Finance, and Mr. Deepak Sharma, Chairman and MD of Sardi Capital, who is the merchant banker for this issue, and Mr. Ashish Jain of Sardi Capital. So, Mr. Nirmal Kumar Jain is a director of Acme Star Housing, has talked about his company, Rural Housing Finance, all those things. See, I have been given 2 minutes time to speak, but unfortunately, I worked in housing finance company. I worked as a assistant manager in State Bank of India Housing Finance Company, SBI SHF, in 92-93, posted from SBI. So I know how the housing finance was, but I don't know how rural housing finance worked till I took a loan for my village house. I spent 7 months. I went 3 times to the particular bank manager, shown all the documents. Since I want to build a house to my parents, I took 7 lakh rupees loan in 97. For that, I spent 8 to 9 months. 3 trips I made. Whenever I go, after taking a 1 week leave, on that particular week, manager will not be there because public sector bank. So I faced so much of problem in the rural housing finance side. And also I was in the housing finance company. So how they are managing asset liability, that is also a big issue. See, because they take money from depositor or they put money, that is a short-term money. They are lending it for 5 years, 7 years, 10 years, 15 years. So this asset liability management, in bank we call it as asset liability mismanagement. All the banks play with that.
but housing finance company are regulated by NHB, National Housing Bank. They monitor this kind of company, rural housing finance company, very strictly, because people always believe that the fraud can happen only in rural area. See, even the fraud happens, it may be for little bit of amount, not in the, see, rural finance, especially company cannot fraud. Only people can default the loan. It is not any Ponzi scheme or anything. The land will be there, house will be there, or house under construction, but that may not be taken because these people go to the court and take a stay, all those things. See, especially in rural finance, what happened? Brother will take a loan in the name of father's land and started constructing. Suddenly one cousin brother will come. So then rural housing finance company fight with them for the land as well as for the at least getting back their money. They face a lot of problem, both housing finance company side as well as the people who want to take a loan also. See, like private companies have come, like Acme Star, they will not be taking 7 months time or 8 months time. Now competition so much, they have to service the loan within 6 days, 7 days, there will be a time limit. They cannot go for 6 months or 7 months. So this kind of social based business, rural based, social based business, which may or may not be as much as profitable, because there are pros and cons in the business, but still people are coming and doing this business, and also they wanted to list as part of their business. Is very welcome move. This is a great move, because once you become listed company, you have to be transparent. You have to be transparent to your shareholders. You have to be see, not only stock exchange is monitoring you, Ministry of Corporate Affairs is monitoring you, and shareholders are monitoring you. If you grow bigger become, say, after now you have listed, now today you are listing, maybe after 2 years you will become a main board company, then it will become big company. See, currently one of the biggest group started as a housing finance company, HDFC, everybody knows. So housing finance is very basic financing for everyone needs, especially people who are, see, roti, you can earn for 1 day and have it. Kapda, you can have it, earn it for 4 days, 5 days, still you can buy a basic kapda. But makan, you have to earn for entire life. That's the reason nowadays every housing finance company giving loan for 30 years. We may not work for 30 years, still we take a loan for 30 years. So it is lifetime earning, lifetime saving, and finally you get one house. But if you have 2 children, it will become a problem. You have to divide it. We may have big cities, 600 square feet. Each children will get 300 square feet. So again, my son or daughter again go for same cycle. He will take a loan for another 30 years. He will buy another one. He will have 2 children. Still divide. See, 150 square feet, nobody can live. So the business is, housing finance industry is a sunrise business. It is going to grow because our population is good enough to have, and rural population is still around 60-65%. So this finance companies is a Sunstar industry. Maybe Acme Star is a company, it's a sunrise industry. It will go for a long, and I wish all the success for this company. Thank you. Thank you, sir. Now I request Mr. Ajay Thakur, Head SME segment, to please say a few words. Sir. I will also speak in Hindi, Nirmal ji. आदरणीय श्री निर्मल जी, डायरेक्टर एक्मे स्टार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, श्री दीपक शर्मा जी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सारथी कैपिटल, श्री आनंद लखोटिया जी, डायरेक्टर सारथी कैपिटल, श्री आशीष जैन जी फ्रॉम सारथी कैपिटल, श्री सौंदर राजन, हेड सेल्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और यहाँ पे आए
सारे अतिथिगण, सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी सुबह आप लोग आए इस लिस्टिंग सेरेमनी के लिए और इसको सक्सेसफुल बनाने का आपने प्रयास किया। सुंदरराजन जी ने भी बताया कि हाउसिंग कंपनी जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, और हमारे हिसाब से सारे एसएमई कंपनीज बहुत इम्पोर्टेंट है इस देश की तरक्की के लिए, और उसमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का एक अपना अलग इम्पोर्टेंस होता है, स्पेशली जो रूरल सेक्टर में है या एग्रीकल्चर सेक्टर में है, जहाँ पे छोटे छोटे फंड्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, और जहाँ पे लोगों की जो सबसे पहली ज़रूरत है वो मकान, रोटी कपड़ा मकान की हम बात करते हैं। इस बजट में भी छोटे छोटे मकानों के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया है कि जो लोग हैं उनको सबसे पहले, जो इतनी बड़ी जो 70% हमारी आबादी है जो कि रूरल सेक्टर में रहती है, जहाँ पे कम पैसों की ज़रूरत है, लोगों की आमदनी भी कम है, और उन रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए शायद इतने सालों में जो पब्लिक सेक्टर बैंक है या प्राइवेट सेक्टर बैंक है उन्होंने अपना योगदान इतना ज़्यादा नहीं किया। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो आपके जैसी जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है उसकी महत्ता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। आप इसको एक तरह से समझ सकते हैं CSR वर्ड, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपने सही बताया कि ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, अगर सिर्फ एक राजा धनी है और प्रजा गरीब है तो उस देश की बहुमुखी जो या चौतरफा जो प्रोग्रेस है, उन्नति है, वो नहीं हो सकती है। और हमको ये देखना है कि हम सबका साथ और सबका विकास करें, और उस समय अगर आपकी कंपनी आगे आती है और इन ज़रूरतमंद लोगों का ध्यान रखते हुए उनका ग्रोथ करती है तो उनके प्रोग्रेस में, उनकी उन्नति में, उनके सुख में ही आपका भी सुख निहित है। और इस तरह ही हम सारे लोग जो है एक इंक्लूसिव ग्रोथ की जो हम बात करते हैं वो आप जैसी कंपनियों के द्वारा ही संभव है। तो आप हमारे यहाँ पे आएँ, और अगर सही मायने में कहें तो आपने हमारे ऊपर एक उपकार किया है अपनी कंपनी को लिस्टिंग करा करके, और हम चाहते हैं कि ऐसी, मेरे ख्याल से आप दूसरी कंपनी है, और पहली कंपनी भी उदयपुर से ही थी, SRG हाउसिंग फाइनेंस। हम 7 से 8 महीने पहले मिले थे और हमने काफ़ी रिक्वेस्ट किया था आप भी अपनी कंपनीज को लिस्टिंग कराएं, और हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में आपकी कंपनी की उन्नति काफ़ी ज़्यादा हो। रेगुलेटरी कंप्लायंस की बात हम जहाँ तक करते हैं, और हमारा ये मानना है निर्मल जी कि इक्विटी जो होती है वो प्रमोटर के हाथ में तो बहुत सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट होती है, लेकिन शेयर होल्डर्स के हाथ में बहुत रिस्की इंस्ट्रूमेंट होती है। तो हमारा आपसे ये आग्रह होगा कि एक अच्छी कॉर्पोरेट कंप्लायंस लाते हुए, एक अच्छी कंपनी में ग्रोथ लाते हुए और एक अच्छी ट्रांसपेरेंसी लाते हुए कंपनी का उत्थान करें, कंपनी को आगे बढ़ाएं, और हमें भी गर्व करने का आपके ऊपर मौका दें। इसके साथ साथ मैं अपने भाषण को यहीं पे विराम प्रदान करता हूं, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। Thank you, sir. Now, to conclude, I call upon Mr. Deepak Sharma, Director, Sarthi Capital Advisors Private Limited. Thank you. धन्यवाद आशीष। आदरणीय सुंदरराजन जी, आदरणीय अजय जी, निर्मल जी और सभी मित्र जो डायस के इस साइड पे बैठे हैं, आज बहुत खुशी का दिन है। एज ए सारथी मेरे को बहुत गर्व है कि आज एक और जेम BSE की डेटाबेस में लिस्ट हुआ। आई एम वेरी प्राउड टू लिस्ट ए कंपनी लाइक एक्मे हाउसिंग। एक्मे हाउसिंग का बिजनेस मॉडल जो थोड़ा रूरल फोकस्ड है, बट यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा अगर अपन नंबर्स को ध्यान से देखें, इस कंपनी की ग्रोथ पिछले 3 साल की एवरेज मोर देन 100% है। और मैं और भी कुछ कहना चाहूँगा कि कहीं पे कुछ डिस्कस हुआ कि सोशल कॉजेज़ के कारण प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा फर्क है। ये भी बहुत कहते हुए गर्व हो रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ भी 3 साल की एवरेज 80% से ज़्यादा की है। आई थिंक मोहन जी, निर्मल जी
एंड बाकी सभी टीम अपने आप में एक आइकन है, जिन्होंने एक ज़रूरत को बिजनेस में कन्वर्ट करके एक एम्पायर खड़ा किया, एक बिजनेस खड़ा किया। और आज लिस्टिंग के अलावा गर्व की बात दूसरी ये है कि उदयपुर से एक छोटा छोटा धंधा करके बड़ा बनने वाली कंपनी आज बीएससी जैसे प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होके ये जताती है कि वो किसी बड़ी कंपनी से कम नहीं है। उसके कंप्लायंसेस, उसकी गवर्नेंस, उसकी मैनेजमेंट, उसके प्रोसेसेस, उसके सिस्टम किसी बड़ी कंपनी से कम नहीं है, और ये बहुत गर्व की बात है। तो मैं एक बार फिर निर्मल जी, आशीष जी और बाकी सभी एक्मे के दोस्त जो यहाँ बैठे हैं उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक छोटे टाइम में अपने आप को इस लायक बनाया। मैं अजय जी, सुंदरराजन जी और बीएसए को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने पूरा सहयोग के साथ बहुत ही फास्ट तरीके से इस कंपनी को लिस्ट किया। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you for your kind words. It was good to hear from you and to receive the Financial Excellence Award day before yesterday in Ahmedabad. Thank you. Now, for the time for the mementos, I request BSc officials to please give memento to Mr. Nirmal Kumar Jain, Director, Acme Star Housing Finance Limited. In this series, I call upon Mr. Nirmal Kumar Jain to come forward to give away the mementos to Mr. V. Sundararajan. Next in this series, to Mr. Ajay Thakur, Head BSc SME segment. Book. Now, none other than Mr. Deepak Sharma of Sarthi Capital Advisors Private Limited. Anand sir. Our registrar, Big Share Services Private Limited. Any representatives? No? So I request, okay, fine. Our market maker, Choice Equity Broking Private Limited, Mr. Manishi Toshniwal. Anyone who can, Anand sir, if. So please. Big Share.
Our banker, ICICI Bank Limited, any representatives? Thank you. Our banker, Axis Bank Limited. No. Okay, thank you. Next, our secretarial auditor, Mr. Ronak Juthawat, whose work is remarkable and commendable for listing of ACME Star Housing Finance Limited. Hello. Yeah. Thank you to one and all present here. Your presence was appreciable and important for us. Without your presence, the ceremony would have been incomplete. With this, I call upon the respectable dais for ringing of gong so as to list the company on the platform of BSE. I also call upon the other directors and promoters of ACME Star Housing Finance Limited to please come forward. Yes. I'll thank Mr. Ajay Thakur, Mr. V. Sondararajan, Mr. Deepak Sharma of Sarthi Capital, Mr. Anandji Lakhotia, Mr. Nirmal Kumar Jain, and all the directors and promoters of ACME Group, and all the ladies and gentlemen who are present here. Thank you. I request all of you to please proceed for the breakfast and tea.